So I'm going to start the lecture, and we will not wait any further for the other participants. As they join, I will admit them in the class. So let's start our lecture. I'm going to share the screen here. So I hope you can see the screen on my laptop. And I also wrote this topic and mentioned this topic in the link as well. Manu has entered into the waiting room. I don't know who is Manu. If you, one of you know, please send me a text in the chat box. Okay, today the topic is Introduction to Chomsky's Theory. Keep in mind that we have discussed so many things on this topic already in the class when we're taking the classes on the campus, right? And I'm again revising such things with a different perspective from a different book, right? So that if we have left any, if we have any leftover things, we could recover it, and we could also kind of revise the things, right? With a new perspective. Or along with that, we will also discuss again the transformation generative grammar, which we have already discussed as well. और उसके साथ we will touch upon the theories as well. ठीक है? And then जो भी main topics हो रहे हैं उनको भी हम करेंगे. जो रह गया. So introduction to Chomsky's theory, these things might be new for you or might not be new for you as well. Chomsky was born somewhere in 1928, so he is still alive. Fortunately still alive. He is such a beautiful mind in this world, right? So he was a professor of, his father was a professor of Hebrew and Jewish education, and Chomsky completed his PhD from University of Pennsylvania in 1955, and since 1961 he is teaching. He is a full professor at the MIT University, Massachusetts Institute of Technology. आप समझ सकते हैं कि this is one of the best university, not best, one of the best. You can simply say that this is the best university in America, right? So Chomsky is a full professor there since 1961. Or not only a professor, he is considered as the most distinguished and original linguist in the world, and also a radical intellectual. So he not only has a very good approach on linguistics or language, but he also has a very solid and erudite knowledge of politics, ठीक है, of international relations. इन चीज़ों के बारे में उसे बहुत अच्छा पता है. तो आप कह सकते हैं सेकंड पैराग्राफ में the writer's child just Dr. Tariq Rahman is the writer of the book. Chomsky became a radical in politics with a left-wing orientation during his youth. यानी अभी तक उसकी orientation kind of left-wing है. आप उसे rightist नहीं कह सकते. He's left-wing, यानी liberal, progressive इस टाइप का उनका mind है. और he is now अच्छी चीज़ है कि he is now famous as an articulate and vitriolic critic of America's neo-imperialist policies. Although he is American, still he criticized America for his neo-imperialist policies, right? जो अमेरिका की policies है to create a kind of global empire. अमेरिका अपनी global empire जो बनाना चाहता है, capitalist global empire on the basis of power. जो अमेरिका ने पूरी दुनिया बहुत सारी कंट्रीज पे अटैक्स चुकी हैं. हम लोगों को उससे बताया जाता है कि अमेरिका is only against Muslims, or he is doing such things, or he is stretching his imperialistic design only in the Muslim countries. No, this is not so. अगर अमेरिका की लिस्ट बताई जाए हमें, नमान अली has entered into the class. अमेरिका की लिस्ट में अभी भी लास्ट टाइम एक बुक पढ़ रहा था उसके ऊपर. It is a very lengthy list where he extends his imperialistic designs and where he extends his own empire, global empire जो बनाना चाहता है. आप उनके कंट्रीज अगर मैं नाम बताऊं, पैनामा है. पैनामा में उसने बहुत खूबसूरत माइन को अटैक किया. अमेरिका अटैक एंड कैप्चर्ड एंड किल्ड उमर टॉरियस एंड मैनुअल. उमर टॉरियस को किल किया था, और उसके बाद मैनुअल नोरिगा को भी बहुत उन्होंने अपने काबू में रखा. उसके बाद ईरान में जितने भी शाहज हैं, मुसद्देक शाह फिरौन, जितने उन लोगों को मानो रेज हिज हैंड. प्लीज सेंड मी अ मैसेज अगर आपको कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में. ओके, ईरान को किया. एक्वाडोर की कंट्रीज हैं, वहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लीडर था हामी रोल्डर्स एंड राफेल कोरिया. इन दोनों को उसने अमेरिका ने किया. ग्वाटेमाला और बेंज उनका क्या जो लीडर था उनको किया. चिलीज एलेंडे, उनको अमेरिका के डिज़ाइन में वो मारे गए. लीबिया कज़ाफ़ी वो गया. इराक के सदाम, कांगो इस्लामाबा, डीएम ऑफ वियतनाम, मैनुअल ज़ेलाया होंडुरास. वेनेजुएला के ह्यूगो चावेज़ को, जो कि अमेरिका ने बहुत तंग किया. द सेचिलीज कंस्पिरेसी में आप देखें, ये अफ्रीका में कंट्री है, वहाँ पे अमेरिका ने अपने इंपीरियल डिज़ाइन को किया. कुवैत में किया, अटैक हुआ. ईरान इराक पे हुआ, सऊदीया पे हुआ.
पाकिस्तान को उन्होंने इनडायरेक्टली किया हुआ है। तो डज मीन अमेरिका की जो इंपीरियलिस्टिक जो ग्लोबल एम्पायर के डिजाइन है, द लिस्ट इज सो लॉन्ग, राइट? So the good thing is that the people like Chomsky are there in America, and they are still raising their voices against America's imperialistic design and the sinister designs behind the global empire, which America is trying to expand in the world. जो पहले तो बहुत ही ज़्यादा अमेरिका के उस तरह के sinister design थे 90s में, राइट? अब फिर थोड़े उससे वाले से कम हुए। जो पहले का अमेरिका है उस तरह का डेंजरस और वो सख्त अमेरिका नहीं रहा। पहले का अमेरिका तो बहुत ही रूथलेस था, बहुत ही जालिम था, राइट? तो चॉम्स्की को कहा जाता है कि ही इज अ विट्रियोलिक क्रिटिक ऑफ अमेरिकास न्यू इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज। इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को मैंने अभी डिस्कस भी किया है और कितनी ज़्यादा चीज़ें मेरे हवाले भी कुछ थी। और चॉम्स्की का कहा जाता है कि ऑल्दो ही इज फ्रॉम अ ज्यूइश फैमिली, राइट, स्टिल ही इज आल्सो क्रिटिक ऑफ इजराइल। इजराइल की जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, मैं चॉम्स्की इज आल्सो अगेंस्ट दोज पॉलिसीज एज वेल। तो इट शोज दैट हाउ गुड अ माइंड इज चॉम्स्की हैज़। तो चॉम्स्की का कितना अच्छा एक माइंड है, जो कितना ऑब्जेक्टिव किस्म का ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखता है। और his books on international relations, media and philosophy are just as erudite and scholarly as those on linguistics। यानी उसकी इतनी ये बुक्स जो मीडिया फिलासफी वगैरह पे उन्होंने जो लिखी है उसने, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हैं जितनी लैंग्वेज के ऊपर उन्हें चॉम्स्की ने लिखी हैं। So he has received many honors, including doctorates from all around the world. Doctorates जो एक और दर्जा उन्हें मिला है पूरी दुनिया से। 1988 में उन्हें प्राइज, क्योटो प्राइज भी मिला है बेसिक साइंस में। और he has also delivered the John Locke lectures at Oxford University 1969 and the Bertrand Russell Memorial Lectures at the University of Cambridge। बड़ा एजाज़ है, ज़ाहिर है उनको लेक्चर्स को डिलीवर करना बड़ा काम था। और पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान और इंडिया की, आल्सो रोट ऑन सच सब्जेक्ट्स, ही आल्सो डिस्कस, ठीक है, वो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में भी उन्होंने इस तरह की बातें पाकिस्तान और इंडिया के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी की हैं। एंड लेट्स सी हाउ ही सीज ग्रामर। The rules governing the way words are placed after each other to create sentences are dealt well within syntax. In the following 3 chapters, we will mainly refer to Noam Chomsky's theory about syntax, in particular and linguistics in general. Let's begin. तो कहता है कि ये हम syntax को following chapter में देखेंगे और especially और linguistics को in general, syntax को in particular. First, let us define grammar. तो ग्रामर कैसे डिफाइन की जाती है, हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। It consists of certain rules which were meant to make you write and speak a language correctly. Your teachers told you what to do. अब देखते हैं, एक तो ग्रामर की एक सर्टन रूल्स पे बेस करती है, प्रिंसिपल्स पे बेस करती है जो हमें सिखाते हैं हाउ टू राइट एंड स्पीक। और इसी के साथ प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो हमने पहले क्लास में भी की थी, कैसे उसे वो क्या कहते हैं, दे प्रिस्क्राइब रूल्स सच एज, यानी जो ग्रामर है या पुराने टीचर हैं आपके ओल्ड ग्रामरियन थे, ये दे प्रिस्क्राइब रूल्स लाइक, बहुत सारे रूल्स हैं, उनमें से 2 यहाँ पे गिवन है। डू नॉट से इट इज़ मी, वो लोग कहते हैं और ग्रामरियन के इट इज़ मी ना बोलें बल्कि से इट इज़ आई, यानी आप फिर दूसरा। इसी तरह डू नॉट एंड अ सेंटेंस, लोग कहते हैं ओल्ड ग्रामरियन की डू नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ preposition। यू शुड एंड अ यू शुड नॉट एंड अ सेंटेंस विद अ preposition। ये भी एक प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामरियन का रूल है, वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं रूल, राइट। डिस्क्रिप्टिव ग्रामरियन उस तरह को डिस्क्राइब नहीं करते, दे वो जस्ट सिर्फ डिस्क्राइब कर देते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं करते, वो जस्ट फॉर्मुलेट कर देते हैं रूल, वो इम्पोज नहीं करते। Some rules taught by teachers are not necessary at all. For instance, it is I is considered pedantic and people normally use it's me। ठीक है, कुछ रूल्स ऐसे हैं, कुछ तो ठीक हैं, राइट, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ शो करता है कि आप एक अपना ग्रामर का नॉलेज जो है ना शो कर रहे हैं, ठीक है, पेडोंट्री कर रहे हैं, शो ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। जैसे कि ये फर्स्ट वन है, इट इज़ आई की जगह नहीं इट्स मी आजकल बहुत आमतौर पर बोला जाता है, लेकिन लोग आपको सिखाया जाए इट्स आई बोलें तो इट डज मीन यू आर शोइंग ऑफ, राइट, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा उसके आपको है नॉलेज है। इसी तरह एक्सीलेंट राइटर कहा जाता है इंग्लिश के, वो प्रेपोजिशन के सेंटेंस भी एंड करते हैं उसके साथ, अच्छी अच्छी जगह पे भी करने लग गए हैं, पहले नहीं होता था, अभी तक भी ओल्ड ग्रामरियन के मुताबिक वो नहीं होता। तो ये जो रूल्स निकले हैं जो हमने पहले भी बात की थी इन द क्लास कि दी रूल्स कम फ्रॉम द लैटिन ग्रामर, राइट। लैटिन ग्रामर है, लैटिन के रूल्स ज़्यादा अप्लाई किए हैं, इंग्लिश ने बारो किए हैं, तो यूरोप में उस वक्त, तो इस वजह से वो अब भी अप्लाई होते हैं और लैटिन की ग्रामर को बड़ा अच्छा समझा जाता था। लेकिन दूसरी लैंग्वेज के रूल, एक लैंग्वेज के रूल दूसरी लैंग्वेज पे ग्रामर के रूल्स यू कैन नॉट अप्लाई। Sometimes you can apply, there are some common rules for all languages, but most of the time you cannot apply the rules of one language on the rules of another language। तो आप उसकी ग्रामर, एक ही ग्रामर लैंग्वेज की ग्रामर के बेस पे you cannot build an edifice of another language।
उसी को आप बेस में कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें जो उर्दू है इन पाकिस्तान, तो इट इट द रूल्स फॉर उर्दू एक्चुअली आर borrowed फ्रॉम पर्शियन एंड अरेबिक। फॉर एग्जांपल उस्ताद जो टीचर है उसके उर्दू में इसका प्लूरल भी उस्ताद है, राइट। लेकिन कुछ लोग पेटेंटिक जो नहीं ज़्यादा वो शो ऑफ करने के लिए कि हमें ग्रामर का नॉलेज है ब्ला ब्ला ब्ला, या अरेबिक प्लूरलाइजेशन रूल को फॉलो करके कहते हैं असातिज़ा, राइट। दिस इज प्लूरलाइजेशन। लेकिन ओवरऑल आप उस्ताद के लिए उस्ताद, यू दिस इज द सेम वर्ड, यानी उस्ताद सिंगुलर भी हो सकते हैं, उस्ताद प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन असातिज़ा आप शो करें डज मीन यू आर शोइंग ऑफ हियर, यू आर शोइंग, यू आर टेलिंग द पीपल दैट या यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ द ग्रामर ब्ला ब्ला ब्ला। इसी तरह हिंदी इसके रूल हैं वो संस्कृत से आते हैं और उर्दू के रूल पर्शियन वगैरह ज़्यादा आते हैं। हाँ, इस बुक में कहा जा रहा है कि हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर को रूल को ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो रूल्स होंगे मोस्ट लिंग्विस्टिक के इंक्लूडिंग चॉम्स्की के, which theories will be discussed in this book are interested in descriptive grammar. मतलब the grammarians including the Chomsky here in this book are who are involved in this book are they are in favor of, they are interested in, or they are fascinated by the descriptive grammar, right? तो हम इन लोगों descriptive grammar के रूल को ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। उनका भी इंटरेस्ट इस बुक में जो हम पढ़ेंगे उस रूल्स का ज़्यादा इंटरेस्ट ऐसे है कि हाउ पीपल फॉर्म सेंटेंसेस, के लोग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो कौन से रूल्स हैं उनके माइंड में, जो व्हाट टूल्स आर देयर इन द माइंड ऑफ नेटिव स्पीकर व्हिच एनेबल देम टू क्रिएट लैंग्वेज। यानी हम वी विल ट्राई टू लुक एट दोज रूल्स, वी विल एट through descriptive approach के how do people form sentences and what are the inbuilt or you can say inbuilt or underlying rules or knowledge or principles which lie there in the mind of people or in the mind of native speaker when they form sentences। तो उस चीज़ को ज़्यादा हम पढ़ेंगे, क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, कैसे बनाते हैं। Somebody joined the class. Okay. Like all scientists, our job is merely to describe these rules. We are not concerned with anybody's notion of good and bad language. तो हम भी साइंटिस्ट की तरह रूल्स को डिस्क्राइब करेंगे, हमें ये नहीं कंसर्न के गुड और बैड लैंग्वेज क्या है। और thus all varieties of language including the varieties of language spoken by uneducated people are part of our study। तो प्लीज एक सेकंड, मेरा ज़रा यहाँ काम है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। ओके सॉरी, आई हैड टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर अ फ्यू सेकंड्स। तो हमारा लाइक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच ये कहती है कि हाउ वी विल जस्ट डिस्क्राइब द रूल, विल जस्ट डिस्क्राइब द रूल्स दैट हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस एक्सेट्रा, हाउ टू फॉर्म लैंग्वेज। तो जो जो वैरायटी या जो रूल्स यूज करते हैं अनएजुकेटेड पीपल फॉर स्पीकिंग सेंटेंसेस, फॉर स्पीकिंग लैंग्वेज, दिस दोज वैरायटी स्टडीज आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर स्टडी हियर इन द बुक। सो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं कहा जाता है कि दे हैव ग्रामर, राइट। In fact, without having some rules for producing sentences, they could not have been produced at all। अगर कोई rules नहीं होते, grammar नहीं होती, maybe sentences ही कभी ना बनते। तो thus it is meaningless to say that such and such language does not have grammar। तो इसलिए ये बात कहना कि कोई grammar के rule नहीं होते language के लिए, it's meaningless almost। तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे देखें आई वेंट होम आए, इसमें दोनों सेंटेंस में 1 और 2 में देखें, फर्स्ट में यू आर गेटिंग सम मीनिंग बिकॉज ऑफ द करेक्ट ऑर्डर, राइट। तो और आपको पता चल रहा है दिस अरेंजमेंट और ऑर्डर इज नोन एज सिंटैक्स एंड सम रूल इन आवर ब्रेन माइंड टेल्स अस दैट द करेक्ट ऑर्डर इज एज इन वन एंड नॉट एज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी सेकंड वन। तो आपका माइंड, आपका ब्रेन आपको बताता है ये करेक्ट ऑर्डर है, तो इसका तब भी फिर कोई करेक्ट मीनिंग भी है, सिंटैक्स भी है। वेयर सेकंड सेंटेंस में सिंटैक्स नहीं है, जब सिंटैक्स नहीं होगा तो मीनिंग भी नहीं बनेगा। तो ये कैसे पता चलता है? अगर आप नेटिव स्पीकर हैं तो आप या आप अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो यू विल बी एबल टू टेल कि यस द फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, राइट, सिंटैक्टिकली, तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। अगर आप नेटिव स्पीकर नहीं भी हैं या इंग्लिश अच्छी जानते हैं तब भी आप बता सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप इफ़ यू आर नेटिव स्पीकर, इफ़ यू हैव अ मदर टंग, इफ़ यू हैव इंग्लिश एज अ मदर टंग और कोई और भी अपनी मदर टंग में आपके पास गलत सेंटेंस, यू विल बी एबल टू जज, ठीक है, कि यस दिस सिंटैक्स इज रॉन्ग। सिंटैक्स अगर रॉन्ग है तो फिर वेल फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब वी विल हैव एंटर्ड द वेटिंग रूम फॉर दिस मीटिंग। वेटिंग रूम आई हैव Ras admitted, Ras still he is not able to join।
अच्छा, तो अगर आप अच्छे नॉलेज है आपके पास उस लैंग्वेज का, अपनी मदर टंग का या किसी और का, तो यू विल बी एबल टू टेल कि यस कि दिस इज नॉट वेल फाउंड, दिस इज वेल फाउंड सेंटेंस। तो ये कहता है कि इंट्यूशन की बेस पे भी, आप इंट्यूशन की बेस पे भी बता सकते हैं कि हाँ जी ये हम ये सेंटेंस ठीक है या गलत। तो ये सारी बात नीचे उसी के मुतालिक हो रही है, इसको मैं स्किप करता हूँ, यू कैन रीड इट when I will upload the lecture again, and then I'll also then I will share the book as well. And here, let's move start from here. In the same way, the human brains also appears to be acting under certain instructions which we shall call rules or principles. यानी human brains भी rules और principle को follow कर रहा होता है, right? और यही रूल्स और यही प्रोसेस, यही रूल्स हम फॉलो करके वी प्रोड्यूस स्पीच और अटेंसेस एंड वी प्रोड्यूस राइटिंग और सेंटेंसेस। तो चॉम्स्की कहाँ पे इंटरेस्टेड है, उन्हीं रूल्स में है। ही इज इंटरेस्टेड मेनली इन दीज रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड फील्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द माइंड एक्चुअली वर्क्स इफ वी कैन फाइंड आउट हाउ इट produces language. So Chomsky is mentalist, so he is interested in the rules. Raj is trying to join, but he is unable to join. I don't know why. He's trying again and again. And Chomsky is interested in such rules and principles. When rules में interested है कि कैसे ये rules use होते हैं, कैसे हमारा mind work करता है, और कैसे वो sentence और language हम produce करते हैं. He is interested in these things. वो external उसमें behaviorist में interest नहीं है यहाँ पे कि कैसे society सिखाती है, बल्कि he is interested in the mind. In the work of the mind, right? Rules और principles पे कैसे mind follow करके ये language produce कर देता है, तभी हम कहते हैं कि he is mentalist. So it is based upon understanding mental phenomena. तो वो mental phenomena हमें अपना बताता है कि कैसे ये mind work करता है. Khabar Rahman raised his hand. Khabar, yes, if you have any questions, you can send me in the chat box. Personally, I am primarily intrigued. ये Chomsky की lines बताई जा रही हैं. One of the aims of his theories is to understand the mind itself. वो जहाँ पे बताता है कि इन theories को understand करने के लिए उसका mind को basically understand करना लाज़मी है. Personally, I am primarily intrigued by the possibility of learning something from the study of language that would bring to light inherent properties of the human mind. यानी कि वो primarily he is basically interested in the properties of human mind, कि how human mind has inherently been gifted with something which help in the learning of language, which he is interested in. Chomsky's others aims, यानी Chomsky के और aims कौन कौन से? To understand the mind, however, is the ultimate goal. कहता है कि mind को understand करना एक ultimate goal है, और mind को understand करके तो does mean you will be able to know how language gets produced, कैसे produce होती है. तो इस गोल को अटेन करने के लिए चॉम्स्की अंडरस्टैंड करना चाहता है व्हाट लैंग्वेज इज. नाउ लैंग्वेज ऑब्वियसली एज अ स्ट्रक्चर दैट इज सम काइंड ऑफ सिस्टमैटिक कनेक्शन बिटवीन द वेरियस वर्ड कंबाइंड टुगेदर टू क्रिएट मीनिंग. तो ज़ाहिर है चॉम्स्की अंडरस्टैंड करेगा जब लैंग्वेज को, तो ही विल अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एज वेल. यानी फिर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना भी लाजमी है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि आप वर्ड्स को वैसे ही पुट टुगेदर नहीं कर सकते, वैसे ही रैंडमली करेंगे तो यू विल नॉट गेट मीनिंग. वेंट होम आए जब हमने बोला तो हमें मीनिंग नहीं मिला था. तो आप वैसे साउंड भी प्रोड्यूस करके लैंग्वेज नहीं बना सकते. जैसे जानवर हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज, वो उस तरह की लैंग्वेज नहीं आती, राइट? वो जस्ट साउंड्स है. इसी तरह आप वर्ड्स लिख करके सिर्फ लैंग्वेज नहीं बना सकते. यू विल हैव टू फॉलो सम स्ट्रक्चर. तो द होल लैंग्वेज इज लाइक अ सिस्टम और स्ट्रक्चर. यहाँ पे बात बताई जा रही है हमें स्ट्रेट अवे कि लैंग्वेज को आप सिंपली नहीं लफ्ज़ लेके लैंग्वेज बनती है या साउंड से लैंग्वेज बन जाती. रादर इट हैज़ टू फॉलो सम रूल एंड प्रिंसिपल्स एंड आल्सो इट हैज़ अ सिस्टम और स्ट्रक्चर. और चॉम्स्की का एक जो अपने एम है इन थ्योरीज का, उसका मतलब यह है कि टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. एंड इन अदर वर्ड ही वांट्स to develop a theory of language structure. Such a theory seeks to answer the questions such as what are natural or human languages. जो उसका उसमें कुछ क्वेश्चन ये हैं जिनको आंसर जानना चाहता है. What are natural human languages? Are they different from artificial languages such as those used in computer? Or are there any common or universal common features as it is possible universal common. ये चीज़ें साथ साथ डिस्कस भी होंगी बाद में चैप्टर में. So Chomsky is also interested in the theory of language acquisition. Language acquisition के theory में भी वो interested था. कैसे यानी कि language acquire की जाती है, बच्चा कैसे acquire करता है language को. और यानी इन दोनों इन चीज़ों को आप देखें तो he is basically he is interested in knowing the work of the brain, how brain or mind works to understand language and to produce language. यहाँ पे interested है.
particular grammar. The goals given above cannot be reached unless we have a great deal of data at our disposal. Our data in this case is obtained from human languages such as French, उर्दू, पर्शियन एक्सेट्रा। कहते हैं वो गोल्स हम नहीं हासिल कर सकते अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा नहीं होता, और ये ज़्यादातर लैंग्वेजेस से ही आता है, जैसे कि ये लैंग्वेज जहाँ पर मेंशन है। तो अगर हमें इन लैंग्वेजेस का स्ट्रक्चर पता है, इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस का, तो हमें फिर लैंग्वेज जर्नल, किसी भी अदर जर्नल लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी मालूम करने में, जानने में आसानी होती है अगर इनके हम स्ट्रक्चर्स बताएं मेन लैंग्वेजेस के। तो दीज पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड ग्रामर्स। अगर आप इन डिस्क्रिप्शन यानी आप इन चीज़ों का स्ट्रक्चर पता करेंगे लैंग्वेजेस का, तो इसको फिर इन पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शंस को आप ग्रामर कहते हैं, राइट। तो उस ग्रामर में फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सिंटैक्स, साउंड, मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा, सिमेंटिक्स, आप उस ग्रामर की जानते हैं, फोनोलॉजी जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक या कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस, उस दिन भी मैंने बात की थी वाइल डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन आई थिंक आइडिएशनल फंक्शन और पोएटिक फंक्शन, हमने बात की थी। कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस से शेयर, कंपिटेंस क्या होता है और परफॉर्मेंस क्या होता है, बहुत शॉर्टली यहाँ पे बताया गया है, तो मैं भी शॉर्टली बताता हूँ। कंपिटेंस देखें, उससे मैंने आपको बताया था, दिस इज नोइंग ऑफ अ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, आप इन्फॉर्म इन शॉर्ट आप कह सकते हैं। और परफॉर्मेंस इज द प्रैक्टिस और द डूइंग, ठीक है, वो डूइंग और द प्रैक्टिस ऑफ द रूल किसी चीज़ की। तो आप सिंपली अगर एक नेटिव स्पीकर हैं, इफ़ यू वांट टू मेजर द लैंग्वेज, ठीक है, कॉम्पिटेंस है, तो उनका कितनी नोइंग है उसूल के बारे में, आप फिर उसको उस कॉम्पिटेंस को कैसे जानेंगे, तो जिस प्रोसेस से जानेंगे वो परफॉर्मेंस होगी। ज़ाहिर है, यू विल हैव टू गिव देम सम परफॉर्म, यू विल हैव टू जज देम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। आप फिर उनसे कोई प्रैक्टिस करवाएंगे, कोई सेंटेंसेस की, फिर उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा, यस दिस इज कॉम्पिटेंस एंड दिस इज परफॉर्मेंस। इन शॉर्ट, कॉम्पिटेंस इज द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, performance is the actual use of language in these situations. Language acquisition device, which Chomsky tells us about this thing. So Chomsky बताता है कि जो human mind है, इसके अंदर there is a fixed device, right, which is known as language acquisition device. Language acquisition device से कहते हैं, human mind के अंदर fit है, और जो which helps human mind in creating unlimited or infinite number of rules, principles, उसकी बेस पे बनते हैं। यानी बच्चा अगर, if a child is taught one word, so he is able to produce so many other sentences on the basis of that one word. अगर child को आप एक word, for example, like आप बच्चे को बोलें, आप कुछ बातें आपने बच्चों को नहीं भी सिखाई होंगी, he or she is still able to produce so many other things on the basis of that one word. अगर आप उसे कहते हैं कि go and please bring a glass of water, और उसे, या तो मे भी 2-3 दफ़ा उसे कहें आप, तो तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा तंग होकर के आपको बोले, आपको समझ नहीं आती है, आई कैन नॉट ब्रिंग, इस तरह की बात जो बच्चे को ना सिखाएगी, वो फिर भी विल बी एबल टू प्रोड्यूस। और चांसी कहता है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जो बच्चे को बहुत सारी चीज़ें खुद सीखता है, हर वर्ड उसे नहीं सिखाया जाता, लेकिन उसकी खुद सीखने के बाद उसका ह्यूमन माइंड जो है ना, ऐसा है कि वो उसको एबल बना देता है, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल। We have been talking about rules and principles over the last few pages, but what exactly are these? In this section, we shall try to answer this question. Remember that we mentioned that producing a sentence in a language may be compared to the process of getting results out of computer. The computer is programmed and arranges items according to the instruction given to it. Is equipped to process information in a certain. Suppose the human brain too has some device which can help it to process. And what would it do? This device Chomsky called. तो कहता है जिस तरह कंप्यूटर में जो मैंने बनाया होता है, तो उसमें एक चिप होती है, जो उसकी आप जो फिक्स कर देते हैं उसी के मुताबिक चलता है। कहता है लेट्स अगर सपोज अगर ह्यूमन माइंड में इस तरह की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो, क्या होगा, तो वी बिलीव दैट ह्यूमन माइंड इज सम सॉर्ट ऑफ डिवाइस जो इसके पास है, जिसकी बेस पे जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी करता है। So this LED for short would have the capacity to arrange the lexical units of any human language according to some general universal principle. Then there would be variation according to the language which we are using. These variations would not be haphazard but would be controlled at one percent. कहते हैं ये फिर लैंग्वेज ये क्या करेगी, LED कंट्रोल करेगी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को, ठीक है, और रूल जो जनरेट करेंगी और उसको गवर्न भी करेगी, और हैपेजर्ड नहीं, रैंडम नहीं होने देंगी, कंट्रोल गवर्न भी करेगी कुछ रूल्स को। तो कहता है कि ये फिर क्या होगा, this would make the LEDs work easier since it would already have universal principles programmed into it, and all it would have to do would be to learn the rules of different particular language. Since this principle of economy is seen in all nature processes, Chomsky maintains
that this may also be how the human brain works. So believe करता है कि इसी तरह human mind भी work करता है, LED यानी जैसे कंप्यूटर करता है इसी तरह के वो कंट्रोल करता है लैंग्वेज को, गवर्न करता है सर्टन रूल्स को, राइट। वो प्रोग्राम होती हैं उसमें कुछ सर्टन रूल्स, तो ह्यूमन माइंड तभी प्रोड्यूस कर देता है, इसका ये बिलीव है। रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हम देखते हैं जी। These principles common to all languages, universal principle are general patterns of language। कहता है कुछ प्रिंसिपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं जो तकरीबन तमाम लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होते हैं, और वो रूल एक लैंग्वेज के बाकी पे भी होते हैं, लेकिन कुछ नहीं होते। फॉर एग्जांपल जहाँ दो सेंटेंसेस है, नया रेन टू द स्कूल, दूसरे में है नया स्कूल भागी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दोनों, इसको ज़रा समझें। देखें एक लैंग्वेज में आपने देखा है इंग्लिश है, दूसरी लैंग्वेज काइंड ऑफ उर्दू है, भागी जो वर्ड है इसमें आपके पास what is this? My internet connection is unstable. Why? Can you guys listen to me? क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन आ रही है कि my internet connection is disabled. आप सुन सकते हैं मुझे? कोई एक प्लीज मुझे बता दें। Am I audible? Yes, sir. We are listening to you. Okay, thank you. अच्छा यहाँ देखें, it is very interesting thing. पहले सेंटेंस में नया इज नाउन, उसके बाद वर्ब फॉलो करता है, यानी SVO वाला रूल है यहाँ पे। नया रेन टू द स्कूल, सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट है। दूसरे में नया स्कूल भागी, राइट। तो आप देखें दो तीन चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। इसमें एक तो ये चीज़ है कि यानी रूल डिफरेंट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल नया के लिए आप रैन चूज कर रहे हैं, और या रैन भागना, तो आप यहाँ पे नया अगर किसी लड़की का नाम है तो इफ यू पुट लड़के का नाम है, ठीक है, मैं कहता हूँ टॉम रैन टू द स्कूल, राइट, तो आप स्टिल रैन ही रहेगा, ठीक है। वो जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ड दैट वुड नॉट चेंज। यानी आप और उर्दू में देखें भागी बन जाएगा, भागा और भागी होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो उर्दू द वर्ब्स the verbs in Urdu are very performative in gender, ठीक है, वो परफॉर्मेटिव से हैं उर्दू के वर्ब, यानी भागा भागी, गा घी गे, राइट। गा घी इंग्लिश में ये काम नहीं होता। इंग्लिश ये रैन है तो रैन इज फॉर ऑल, मतलब फॉर मेल एंड फीमेल, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एज वेल। Whereas इंग्लिश में एक चीज़ होती है, the pronouns in English are very performative, right? Sorry, the nouns in English are specific for different genders. उर्दू के वर्ब जो है ना वो परफॉर्मेटिव है जेंडर में, लेकिन इंग्लिश में नाउन्स हैं, यानी सॉरी प्रोनाउंस हैं। आप प्रोनाउन को देखें, ही और शी अलग अलग के लिए, उर्दू में आप कह देते हैं, तुम कह देते हैं, दोनों के लिए। तो यहाँ पे वो डिफर करता है। तो उर्दू में एक और चीज़ भी यहाँ पे है, आप बाकी जो लग गया है आई और ए वाला रूल है, इस पैराग्राफ में आगे यही बात बताई जाएगी। आई और ए जो है ना, दिस विल गिव अस सम डिफरेंट यहाँ पे इन्फ्लेक्शन, यानी आपका जो नाउन है यानी नेम है नया वाला, वो इट इज काइंड ऑफ क्या कह सकता हूँ, डोमिनेटिंग, ठीक है। इट इज डायरेक्टिंग द इन्फ्लेक्शन ऑफ द वर्ड एज वेल, यानी नाउन नया वर्ड है, इंग्लिश में उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा वर्ड पे इसके लिहाज से। तो इन्फ्लेक्शन भी चेंज हो जाती है। इन्फ्लेक्शन आपने जो डेरिवेशन इन्फ्लेक्शन वगैरह पढ़ी थी, इन्फ्लेक्शन तो मॉर्फीम्स जो पढ़े थे उसके लिए उसकी बात कर रहा हूँ। आई और ए चेंज हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम इन उर्दू में चेंज हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं चेंज हो रहे। और दूसरी चीज़ क्या चेंज हो रही है, रूल्स देखें वो चेंज हो रहे हैं, यानी एक नाउन लगा फिर वर्ब लगा, लेकिन यहाँ पे उर्दू वाले सेंटेंस में यू आर यूजिंग नया एंड देन यू आर यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें फर्स्ट इंग्लिश वाले में ऑब्जेक्ट अपने आखिर में रखा था, हालांकि उर्दू में क्या होता है, नया स्कूल, उसके बाद फिर आपने एक नाउन रख दिया यानी ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर बाद में बात रखा। तो हमें यहाँ से पता चलता है यू कैन नॉट solely apply a rule of one language on any other language, और कुछ रूल्स कर भी सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स हैं, फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिक, सिमेंटिक्स, आपको पता भी है कैसे रिलेटेड है, यहाँ मेंशन भी हैं। और दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस chapter, right, introduction to tables. And tomorrow we will discuss the transformation generative grammar as well. And if you have any questions, you can ask me here regarding this topic. We still have 5 minutes in the meeting. Chat में किसका message? If anyone have any question, you are welcome to say here.
So nobody has any question. Thank you for being the part of the class. I've recorded the lecture and I will share on Google Classroom. Okay, Zaid Khan, I will share the book as well. Thank you very much.